हेलो बच्चों। आज हम अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। We all know that suppose this is the earth, and when we release a small stone upwards from the center of the earth, okay, this body, it will goes upward, but the speed of this body, it will not remains constant. Speed or velocity is not constant. Why? Because see, the earth's gravitational force is exerted on this body. That is why it moves toward the center only. So after a certain time, after reaching certain time, the velocity becomes zero. The velocity becomes zero at certain time, and after that it comes to the center. So this is what is called as Earth's gravitational force. Understood? What is Earth's gravitational force? It comes towards the center because the Earth's gravity is concentrated at the center of the Earth. That is why this body, it comes to the center of the Earth. This force is called as Earth's gravitational force. Understood? So on this topic, in your exam, they may ask you what is Earth's gravitational force, or explain the term Earth's gravitational force. Earth's gravitational force, इसके बारे में डिफाइन को भी आएगा और राइट short note. Okay, now now we'll see Earth's gravitational acceleration, new concept now, which is related to this one only. Earth's gravitational acceleration. We all know that this body, it is accelerated. You know what is acceleration? Actually, acceleration, see, acceleration is equal to change in velocity per unit time. See here, acceleration के दो टाइप है, linear acceleration and vertical acceleration. See, what is this? Linear acceleration. See here, suppose this is a platform and this is the object. When we apply force, or suppose this is a ball, already it is moving, पहले ही वो धीरे 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 आगे जा रहा था बॉल, और किसी ने आके फोर्स अप्लाई किया, तो पहले का जो वेलोसिटी था अभी चेंज होगा, राइट? सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, सो v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 अपॉन t. ठीक है, v2 मीन्स व्हाट? फाइनल वेलोसिटी, v1 मतलब इनिशियल, पहले वाला वेलोसिटी कम था, अब फोर्स अप्लाई करने के बाद वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ गया और उसके लिए थोड़ा टाइम भी लग गया होगा, राइट? सो दिस इज व्हाट? लीनियर एक्सेलरेशन. बट सी वर्टिकल एक्सेलरेशन, विल सी वर्टिकल एक्सेलरेशन. वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या होगा? सी, व्हेन वी रिलीज्ड अ बॉडी फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, ये हाइट है, किसी हाइट से अगर बॉडी को रिलीज किया, किसी बिल्डिंग से रिलीज किया, ठीक है, किसी ब्रिज से रिलीज किया, सो इट विल कम्स डाउन ऑन द प्लेटफॉर्म ओवर ऑन द ग्राउंड. ओके, सो दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज वर्टिकल एक्सेलरेशन. यहाँ पे क्या करना पड़ता है? वर्टिकल एक्सेलरेशन में
किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इट बॉडी इट कम्स डाउन ओवर, ठीक है। ग्रेविटी मतलब अर्थ की ग्रेविटी उसे खींचती है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती ही है। विदाउट अप्लाइंग external imbalanced force this body will not accelerate, will not sit into acceleration, ठीक है। so this is linear acceleration, this is vertical acceleration. now vertical acceleration में अगर gravity important रोल प्ले कर रही है तो acceleration due to gravity, राइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्चुअली एक्सेलरेशन के लिए हम लोग ये कहेंगे दिस इज व्हाट सिंपल एक्सेलरेशन, सिंपल एक्सीलरेशन एंड जी फॉर, ये भी एक्सेलरेशन है बट ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, इट मीन्स व्हाट वर्टिकल एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, so today we are going to discuss about Earth's gravitational acceleration और acceleration due to gravity, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ Earth's gravitational acceleration. So we all know that F is equal to m into a, but here in this case in the Earth's gravitational acceleration instead of a I'm using g over here. Okay, what is g? It is the acceleration due to gravity. Instead of a, ये acceleration है लेकिन ये simple acceleration के बारे में small a यूज करते हैं, और gravity के वजह से जो body accelerate हो रही है downward, okay, उसके लिए g यूज करेंगे हम लोग। Now we all know that last time we have discussed this force between the two body, इसका फॉर्मूला हमने देखा था कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, और डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका रिलेशन भी हमने देखा था, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ बाय कंपेयरिंग these two equations from equation 1 and 2 we get what we get, mg is equal to capital G m small m upon r square. See here, f is equal to mg, तो mg is equal to what, g m m upon r square, राइट, ये दोनों सेम है ना, इसीलिए हम लोग mg is equal to g m m upon r square, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इक्वेशन 3। एक्चुअली यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स के बारे में, मतलब यहाँ पे सिंबॉलिक लेटर यूज किया, तो यहाँ पे मैं इसका एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सी व्हाट इज दिस, स्मॉल m मीन्स व्हाट, this is the mass of an object, ठीक है। कैपिटल M means what, it is the mass of earth, ठीक है। what is G, it is gravitational constant, of course it is universal gravitational constant, universal gravitational constant। what is R, it is a distance, और इन केस ऑफ अर्थ हम लोग यहाँ पे रेडियस लिखेंगे। सो यहाँ पे कैपिटल आर के बदले, सॉरी स्मॉल आर के बदले में कैपिटल आर भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने, ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे इसको। इक्वेशन नंबर 3 को मैं, देखो m इंटू जी, सो जी दिस इज व्हाट m स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। सो व्हाट इज आर, इट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। इफ वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g इज इक्वल टू व्हाट, g, तो ये तो कैपिटल होगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए एम नीचे आएगा, सो दिस विल गेट कैंसल, सो फाइनली कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो वी नो दैट व्हाट इज G, व्हाट इज M एंड व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ दिस। सी
जी की वैल्यू तो हमें पता है 6.67 into 10 to the power minus 11, और दिस इज व्हाट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड दिस इज मास ऑफ द अर्थ कितना है 10 to the power 24 kg। ठीक है, रेडियस कितना है, रेडियस 6.4 into 10 to the power 6, इतना रेडियस है। आर स्क्वायर है इसलिए हम लोग आर स्क्वायर करेंगे, राइट। इफ यू सॉल्व दिस you will get the gravity. This is not capital G over here, this is small g. Okay, so we are finding out the acceleration due to gravity over here. Now see, 6.67 into 10 to the power minus 11 into 10 to the power 24 अपॉन 6.4 into 6.4 स्क्वायर है ना, ये डबल लिख रहा हूँ मैं, इंटू 10 टू द पावर ये 12 हो गया। यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है, 6.67 हाँ, यहाँ पे इंटू 6 करता हूँ मैं, क्योंकि ये मास ऑफ द अर्थ कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर 24। ठीक है, 6 इंटू 20 द पावर 24 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 6 लगाता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, 6 इंटू 6.67 इंटू, ये माइनस करता हूँ 24 माइनस 11, तो 10 टू द पावर 10 टू द पावर 13, ये प्लस 13 रहेगा ना। ठीक है, 6.4 इंटू 6.4, ये 10 टू द पावर 12 जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, मीन्स वॉट 10 टू द पावर माइनस 12, सो 13 माइनस 12 ओनली एक ही रह जाएगा। सो जी इज इक्वल टू वॉट 6 इंटू 6.67 इंटू 10 अपॉन 6.4 इंटू 6.4। सो जी इज इक्वल टू वॉट 6.67 का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो आएगा 40.02 इंटू 10 अपॉन 6.4 इंटू 6.4, that is 40.96. So finally if we multiply this you will get here 400.2 upon 40.96, so finally it will becomes 9.77, it means around 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिकॉज एक्सेलरेशन का भी हमें पता है, एक्सेलरेशन राइट, एक्सेलरेशन का जो यूनिट है ऐसा यूनिट, दिस इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसका भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज ऑल अबाउट अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, so this is all about this one.